Very good morning. So let's start a new chapter, that is chapter 9, biomolecules. Okay, that word itself, what we are going to learn, that is biomolecules. See, bio and molecules. Molecules which are required to maintain a life, that is called biomolecules. So which molecules they are important to maintain a life? They are lipid, carbohydrate, then protein, and last one is acid. So these four biomolecules, basically four biomolecules, lipid, carbohydrate, protein, and that is nucleic acid. Okay. How I can hide this number of students? ये कैसे मैं hide कर सकती हूँ? कंट्रोल यू करो, अल्टर प्लस यू. I don't want this list, student list मुझे नहीं चाहिए. हाँ, fine. Okay. So biomolecules, basically four biomolecules, they are required to maintain a life, and they are, what are they? Lipid, carbohydrate, protein, and nucleic acid. So that four biomolecules which are important to maintain a life. Okay. Now next one is, what is the exact definition of biomolecule? That is, it is a chemical compound. Biomolecule, it is a chemical compound and these are found in living organism, or you can say that which are necessary to maintain life. कोई नो माइक कौन से, please unmute yourself. Basically, what is chemical compound? Chemical compound is composed of organic plus inorganic compound. Okay. So basically, अगर कोई पूछे कि biomolecules क्या है, तो what you need to give the answer? That molecules which are required to maintain a life. It is a chemical compound कि किसके अंदर होता है? Living organism के अंदर होता है. It is composed of organic as well as inorganic compound. What is organic? What is inorganic? Organic basically इसका बना है majority, that is carbon, hydrogen, oxygen, that is called organic. उसके अलावा जो है that is belongs to inorganic. So दोनों चीज को मिलाओ, organic, inorganic, it forms biomolecules. And these are the example. आज मैं सब आपको introduction बताऊंगी कि lipid क्या है, ये क्या है, वो क्या है. तो step by step दिखना है, one by one. अब देखो कैसे हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स को, हाउ वी कैन सेपरेट. तो फर्स्ट वी कैन सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. तो लिविंग टिश्यू, अगर प्लांट है तो लिव्स लो, एनिमल है तो यू कैन टेक अ लीवर ऑफ एनी स्मॉल एनिमल्स. सो टेक द टिश्यू, उसको ग्राइंड करो. किसके अंदर ग्राइंड करना है? दैट इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, उसके अंदर ग्राइंड करो. ग्राइंड करने के बाद क्या करना है? यू नीड टू filter. So for filter, you can use cheap cloth, you can use muslin cloth, you can say that कोई कपड़ा भी चले. तो उसमें से क्या करना है? आपको फिल्टर करना है. वो फिल्टर हो चुका, दैट इज कॉल्ड, जो फिल्टर हो चुका दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. मतलब जो चीज बाहर आ रही है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और जो चीज रह गई किसके अंदर? मटेरियल के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिटेंटेट. रिटेंटेट, रिटेन, अंदर वो रह गया. तो फिल्ट्रेट, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? यू विल फाइंड एसिड सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड, और यहाँ पे एसिड इनसॉल्युबल, क्योंकि ये क्या है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इट इज वन काइंड ऑफ योर एसिड केमिकल. तो जो सॉल्युबल है वो निकल गया क्लोथ में से, और जो नहीं है वो रह रहे हैं उसके अंदर. अब ये जो निकल गए तो उनका वेट कम था, इसीलिए वो पोर में से निकल गए क्लोथ के. तो देयर मस्ट बी, उनका वेट कैसा होगा? लेस देन 1000 डाल्टन. तो उसको बोलेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल. अब जो रह गए, ठीक है, विच कैन नॉट पास थ्रू दैट मसलिन क्लोथ, तो उनकी साइज बड़ी थी, रह गए, तो देयर साइज इज मोर देन 1000 डाल्टन, और उसको बोलेंगे बायो मैक्रो. माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो छोटे होते हैं, मैक्रो साइज में बड़े होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट वी कैन सेपरेट कि लेस देन 1000 डाल्टन,
they called bio micromolecule. More than 1000 Dalton, they are called bio macromolecule. So these are about on the basis of molecular weight we have separated. So I hope this is clear. On the basis of molecular weight that we separated. This is clear? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes. Fine. Next one is हम उसको एनालिसिस कैसे करेंगे? हाउ वी कैन एनालिसिस दैट मॉलिक्यूल्स. ओके, तो क्या करना है उनको, कैसे हम जानेंगे बिटवीन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? तो लिविंग टिश्यू को पहले क्या करना है, यू नीड टू ड्राई. तो जो लिविंग टिश्यू होता है उसका ऑलमोस्ट अ पार्ट इट कंटेन्स वाटर, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, पहले वे करना है. तो यू विल गेट अ वेट वेट. उसके बाद क्या करना है, उसको ड्राई करना है इन सनलाइट. तो वो ड्राई हो गया, सूख गया, मतलब ऑल द वाटर इट इज गेट इवेपोरेटेड. और अगर आप उसका वे करो और आप उसको माइनस करो तो एग्जैक्टली यू कैन फाइंड द बायोमास. क्या एग्जैक्ट मास क्या था उसका पानी के बिना. तो पहले वे करो, ड्राई करने के बाद वे करो, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड बायोमास. लिविंग टिश्यू लो, उसको क्या करना है, यू नीड टू ड्राई. ड्राई करने के बाद क्या करना है, आपको उसको जलाना है ना, डायरेक्ट बर्न करना है. तो बर्न करने से क्या होगा कि सच कंपाउंड्स दैट दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो जल रहे हैं, दैट इज कार्बन कंपाउंड. सो कार्बन कंपाउंड, अगर कोई पानी बचा है तो इट गेट इवेपोरेटेड. और जो बचा दैट इज कॉल्ड एश, दैट कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. तो देखो कार्बन के अलावा जो चला गया, जो जल गया, दैट इज ऑर्गेनिक. और जो बचा कुचा है, जो ऐश है ना, आप उसको राख बोलेंगे. जो बचा कुचा है दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एलिमेंट व्हिच कंटेन सल्फेट, phosphate, NaC, etc. So this is about analysis of organic as well as inorganic. I hope this is clear. And you just take a screenshot of this board. Just take a screenshot and send it to me. Take a screenshot. And if it's done, then say, okay, fine. Now next, now focus what I'm going to tell you कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसके बने. यहाँ पे ध्यान दो तो पूरा चैप्टर इजीली जाएगा, क्योंकि हमें कंफ्यूज नहीं होना है. वी डोंट नीड टू कंफ्यूज बिटवीन दैट 4 बायोमोलिक्यूल्स. हर एक का अपना स्ट्रक्चर है, हर एक के अपने बॉन्ड्स है, हर एक का अपना अलग इंपॉर्टेंस है. तो चारों के चारों जो चीज है बायोमोलिक्यूल्स, वो क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. Is there any question in that analysis or that molecular weight separation? You can say, just unmute yourself and say yes or no. Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. Shall I move further? Yes. Shall I move further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Fine. Let's start about biomolecules. Please pay attention. अगर लास्ट ऐसा कुछ हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन अभी ध्यान देना कि what I'm going to write. Biomolecules बेसिकली 4 है. फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो इट इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट. इफ आई टॉक अबाउट second, it is lipid. If I talk about third, it is protein. अगर चौथा लिखूं, it is called nucleic acid. तो पूरे चैप्टर में हम ये 4 चीज के बारे में बात करेंगे कि क्या है. ओके, हम किसके बने हैं, किसके बिना नहीं चलेगा. तो this all things they are called biomolecules. So let's start from the first, carbohydrate. What is carbohydrate? Carbohydrate देखो नाम ही बता रहा है, carbohydrate. Carbo, it is composed of carbon, hydrogen, oxygen, and sometimes nitrogen, sulfur. So that is called carbohydrate. ठीक है. अगर वो सिंगल है तो we call it monomer. सिंगल मॉलिक्यूल है तो we call it monomer. लंबा है, बहुत जुड़ा है, बहुत सारे मोनोमर है, we call it
पॉलीमर। और इसका जो बॉन्ड है, जो मान लो ये सिंगल मोनोमर और ये आपका पॉलीमर, तो पॉलीमर सिंपल भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, लाइक दैट वे, यहाँ से ब्रांच बना। तो ये चीज हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसा ब्रांच है, क्या है। अगर आपको याद है तो हमने सेल चैप्टर में देखा था कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, मैं क्या बताती थी आपको, पॉलीमर है, पॉलीमर है। व्हाट इज पॉलीमर? अ चेन, ठीक है। ये बाद में बात करेंगे कौन है चेन के अंदर, लेकिन बाय दैट वे दे मेक अ चेन सॉरी, आइदर ब्रांच और लीनियर। अगर सिंगल है दैट इज कॉल्ड लीनियर, ऐसा है तो ब्रांच। तो दो टाइप, लाइक दैट, लीनियर एज वेल एज ब्रांच। और बॉन्ड कौन सा है? दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो भी मोनोमर एक दूसरे से अटैच है, दे आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दैट इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट। तो हम ये देखेंगे मोनोमर भी क्या है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन वी डिवाइड ट्रायोस, पेंटोस, हेक्सोस। फिर स्टार्च एक एग्जांपल पॉलीमर का आएगा, देन अमाइलो पैक्टिन ब्रांच में आएगा, अमाइलोज लीनियर में आएगा। सो दिस आर द एग्जांपल दैट वी विल सी। स्ट्रक्चर वाइज हमें देखना है इस चैप्टर में, तो ये सब आएंगे। सेकंड वन इज इफ वी कॉल लिपिड। तो लिपिड किसका बना है? लिपिड इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। 3 फैटी एसिड, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 फैटी एसिड, 1 2 3 और एक ग्लिसरॉल, और वो बॉन्ड बनाएंगे। तो 3 फैटी एसिड चाहिए और एक ग्लिसरॉल चाहिए, तब जाके क्या बनेगा? लिपिड बनेगा। अब फैटी एसिड में भी टाइप है, सैचुरेट, अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन ऐसे ऐसे जुड़ा है फैटी एसिड में तो वी कॉल इट सैचुरेट, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसका मतलब है वी कैन ब्रेक दैट बॉन्ड और कुछ डाल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेट। वो चीज हम देखने वाले हैं, सो डू नॉट वरी। तो वो सब टाइप देखेंगे। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड है आपका एस्टर बॉन्ड। किसके बीच बॉन्ड बनेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वो दोनों जुड़े हैं। 3 फैटी एसिड प्लस दैट इज ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट वन इज दैट इज प्रोटीन। अब प्रोटीन किसका बना है? प्रोटीन अमीनो एसिड का बना है। अमीनो एसिड, अब मान लो ये आपका सिंगल अमीनो एसिड, ऐसी चेन आ गई बहुत सारी, ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। तो ये किसका बना है? प्रोटीन किसका बना है? दैट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, लाइक दैट वे। और ये जो चेन एक दूसरे से जुड़ी है वो बॉन्ड है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। दैट इज वेरी मच स्पेसिफिक। एवरी बॉन्ड, हर एक बॉन्ड अपना स्पेसिफिक है। ये ऐसा आएगा एस्टर बॉन्ड, ये आपका ऐसा आएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आपका लाइक दैट वे। हर एक बॉन्ड स्पेसिफिक है। तो अमीनो एसिड, अब अमीनो एसिड जो है ऐसा अकॉर्डिंग टू योर बुक कि देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो मोर देन 300 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट अमीनो एसिड। और वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? इफ आई ड्रॉ कार्बन, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, HNR, ये स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का होता है। ये R जो है दैट इज वेरिएबल, ये फंक्शनल ग्रुप आपका वेरिएबल, अदरवाइज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स आर सेम। और आपको नीट की एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर किसका है, ये किसका है, ये किसका है। वो मैं आपको जब हम प्रोटीन पढ़ेगी तब पढ़ाऊंगी कि हाउ यू कैन रिकॉल कि जो 20 टाइप्स के हैं तो कैसे आप उसको याद रखोगे। तो दैट आई विल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे याद रखोगे। एक एग्जांपल दूं तो दो नाम है अमीनो एसिड के, सीरीन एंड थ्रियोनिन। सीरीन एंड थ्रियोनिन, दे आर द नेम ऑफ अमीनो एसिड। तो वहां पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनके स्ट्रक्चर में। OH आगे भी कुछ है लेकिन दे कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाउ यू कैन रिमेंबर सीरीन एंड थ्रियोनिन? ये 20 में से दो नाम मैंने बताए। तो ये जो दो है मतलब सीरीन एंड थ्रियोनिन, तो हम कैसे याद रखेंगे? सीरियसली ट्रीट,
सीरीन सीरियसली ट्रीट, क्यों? अल्कोहल पिया है, सीरियसली ट्रीट। तो अगर सीरीन थ्रियोनिन है तो दे कंटेन अल्कोहल इन इट्स स्ट्रक्चर, सो बाय दैट वे यू कैन रिकॉल। तो ये सारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द ट्रिक्स, कैसे आपको याद रखनी है। आई होप ये समझ में आया समझ में मैंने क्या बताया अभी? इट इज जस्ट एग्जाम्पल। आया कुछ समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी इतना याद रखो, ज्यादा बर्डन नहीं लेना, मैं हूं बर्डन को संभालने के लिए। कुछ चीज अगर दिमाग से ना है ना तो डू स्मार्ट वर्क। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कैसा होता है? अमीनो एसिड कैसा होता है कि कार्बन, अमीनो ग्रुप, कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप HNR, ये HR वो बाद में देखेंगे। अभी इतना याद रखो कि व्हाट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, और कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट वन इज दैट इज न्यूक्लिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड, उसके बिना हमारी लाइफ नहीं है। एग्जांपल DNA एंड RNA। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड किसका बना है? अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ट क्योंकि स भी आने वाला है। अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेन है लंबी, और दे आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसका बना है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये देखो चारों के चारे बॉन्ड अलग है, सब अलग अलग बना है। तो नेवर कंफ्यूज बिटवीन दैट 4 बायोमोलिक्यूल्स। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अभी यहाँ पे डालते हुए न्यूक्लियोटाइड, ध्यान देना, it is composed of nucleoside plus inorganic phosphate। pi मतलब inorganic, inorganic phosphate। और न्यूक्लियोसाइड जो है it is composed of sugar as well as nitrogen based compound। वो हम देखेंगे कौन सा है, ATGC, ऐसा तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। तो लाइक दैट वे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? Yes, ma'am. ओके, तो अभी मैं लिखूं तो दिख रहा, ले लो, लीजिए स्क्रीनशॉट। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये आपको कभी भूलना नहीं। दिस आर द वेरी बेसिक थिंग्स। अगेन आई रिपीट, बायोमोलिक्यूल्स, व्हिच थिंग्स आर इंक्लूडेड? चलो बोलो, व्हिच थिंग्स आर इंक्लूडेड? carbohydrate, Carbohydrate, protein and nucleic acid. protein, Nucleic acid. कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। Nucleic Four, acid. yes, 4 things they are called biomolecules। हर एक चीज अपनी अलग है, हर एक का बॉन्ड अलग है, तो ये अच्छे से लर्न करना। कार्बोहाइड्रेट, सी नेम इटसेल्फ सेज कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सब कुछ। लेकिन सिंगल को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट मोनोमर। Mono सारे इकट्ठे हो गए, वी कॉल इट पॉलीमर। और polymer, yes, उसमें भी दो, which two things? branch, Linear and branch। branch, Linked by which bond? glyco, glycobond, Glycosidic bond। बेटा glycosidic bond वो बोलेंगे सर, glycosidic bond। Next one is lipid। Lipid is composed of 3 fatty acids, 3 fatty acid, plus 1 molecule of glycerol। glycerol, glycerol, glycerol। Try to repeat, मैं अगर बोलूँ ना तो if you find a problem in pronunciation, then speak with me। अपना मतलब unmute रखना और साथ में बोलना। Fatty acid, glycerol, it is called glycerol। glycerol, Glycerol, and they are linked by which bond? Ester bond। ester bond, Ester bond। Next one is protein। What is protein? Protein is composed of a chain of amino acids। chain of amino acid. ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का कैसा है, लेकिन बाद में देखेंगे, तो डू नॉट वरी राइट नाउ। अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, और ये जो चेन बनी है कौन सा बॉन्ड है? दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? Peptide bond, पेप्टाइड बॉन्ड। लास्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल DNA, RNA,
तो क्या है न्यूक्लिक एसिड? अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एंड वो बॉन्ड किसका बना है? Phosphodiester. डाइएस्टर, डाई मतलब टू, फॉस्फोडाइएस्टर, यस और नो? Yes. और न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? न्यूक्लियोसाइड, सो न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड किसका बना है? नाइट्रोजन बेस And एंड शुगर, इतना याद sugar. रखना। डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज Yes. शुगर, आरएनए है तो राइबोज शुगर। ना याद रहे तो भी कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना काफी है। अभी मंडे में अगर आपको करवाऊं तो इतना आपको आना चाहिए। I hope Yes. Yes. okay.